Hello and welcome back to Accounts is Easy. So I hope children you watched my previous video which was comparative balance sheet and common size balance sheet. So we covered that in the last class, both of these. So balance sheet का format तो आपको पहले से पता था तो it became very easy. Today we are going to learn something new which is statement of profit and loss. तो statement of profit and loss कैसे बनाना है? The format which is very easy, nothing compared to balance sheet. बहुत straightforward, छोटा सा balance sheet है, छोटा सा format है. And in that of course comparative and common size statement हम लोग सीख लेंगे because calculation बिल्कुल simple है comparative और common size का, वो same रहता है, बस अगर format समझ में आ गया तो वो easy हो जाएगा. So let's quickly take a sum, and before we start I hope you have subscribed to the channel, and if not please do that right now. And do press the like button in case you happen to enjoy the class and you understand the concept clearly. Okay, so let's take the sum. Okay, तो मैंने यहाँ पे एक sum लिया है. It says from the following information prepare the comparative statement of profit and loss. Statement of profit and loss मुझे पता है. Incomes और expenses दोनों compare करते हैं and we find out profit or loss. Alright. Now जो companies का जो profit and loss बनता है उसका एक format है. जैसे companies का balance sheet का एक fixed format है, वैसे ही profit and loss statement का भी एक fixed format है, vertical format है. Incomes ऊपर, expenses नीचे, इसे side by side नहीं रखना है. Incomes, expenses and income minus expense will give you profit or loss. So यहाँ पर revenue from operation meaning sales is given to you. This is my income. और कोई other income भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे इस सब में other income नहीं है. अगर other income होगा तो वो भी हम उसको add कर देंगे sales पे and we'll get the total revenue. Okay, so now the first thing is when we start doing the sum, we'll write the heading. What are we making? Comparative statement of profit and loss. अगर company का नाम दिया है of so and so company, and for the years ended this and this, ये 2 साल का मुझे बनाना है comparative statement. तो I will write the heading as comparative statement of profit and loss of dash छोड़ देते हैं, जो भी कंपनी का नाम होगा, for the years ending 31/3/22 and 31/3/21. बैलेंस शीट में हम क्या लिखते थे? डेट एज एट. इसमें लिखना है फॉर द ईयर्स एंडिंग. तो ये प्रॉफिट का जब भी स्टेटमेंट बनेगा तो ये फॉर द ईयर एंडिंग होता है और बैलेंस शीट इज ऑन पर्टिकुलर डेट तो एज एट होता है, ये ध्यान रखना. देन हियर जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में अमाउंट के 4 कॉलम थे, वैसे ही यहाँ पे होगा और यहाँ पे फॉर्मेट के लिए पर्टिकुलर्स, दैट रिमेन्स द सेम. ओके, सो आई क्विकली ड्रॉ द लाइन्स, यू टू डू दैट. लाइन बन गया. चलो, सो दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज द नोट नंबर कॉलम. यहाँ पे नोट कुछ बनाना नहीं है, फिर भी नोट नंबर कॉलम रहेगा. दिस विल बी द करंट ईयर 2022. लेटेस्ट ईयर इधर रहेगा पहले, उसके बाद 21. द प्रीवियस ईयर शुड कम लेटर ऑन. एब्सोल्यूट चेंज मीनिंग इन रुपीज टर्म्स एंड परसेंटेज चेंज. तो देखो ये जो अमाउंट के कॉलम्स है ये 4 एकदम सेम है जैसे बैलेंस शीट में बनाए थे. करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. एब्सोल्यूट चेंज मीनिंग करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, and percentage change over previous year into 100. वही calculation है. So amounts is not a problem. Now how do we start with? We start this statement with number 1, revenue from operations. ठीक है, format के हिसाब से this is the first thing that should come. That is given as 2 lakhs and 1,60,000. So I put it here. 2 lakhs and 1,60,000. तो अभी सिर्फ अमाउंट यहाँ पे प्लेस करने हैं मुझे फॉर्मेट के हिसाब से.
There is no other income here. Other income होगा तो number 2 other income. Then I will write the total. तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, so total revenue ये हो गया, यही सेम चीज 2 lakhs and 1,60,000. The same thing here. इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ. Alright. Now this is number 2, number 3 expenses. इनकम हो गया, अब एक्सपेंसेस आएंगे. एक्सपेंसेस का कुछ स्पेसिफाइड हेडिंग्स होता है, जो है कि जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या जो भी चेंजेस इन इन्वेंट्री है, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था. सो वी डू दैट. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज ऑफ इन्वेंट्री, वो लिखा रहेगा. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो सैलरीज, वेजेस एंड अदर थिंग्स पेमेंट दैट आर मेड टू द एम्प्लॉइज, पीपल वर्किंग, वो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में. डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इंटेंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइज किया है, वो सब एक हेडिंग में आता है. तो बेसिकली तुमको यहाँ पे हेडिंग नहीं जानना है. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर एक्सपेंसेस. इतना तो पता करना होगा कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, जनरल मिसलेनियस, एंड इनकम टैक्सेस है. टैक्स पे बाद में आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 एक्सपेंसेस. तो इसको जैसा दिया है वैसा ही यहाँ पे एनलिस्ट कर देंगे. सो इट कम्स एज cost of materials consumed 96,000, 72,000. Employee benefit expenses 16,000 and 16,000. Then depreciation. Depreciation, you should know it's on fixed assets, tangible, and amortization उसी चीज को बोलते हैं जो intangible assets पे हो जाता है. Any reduction in the value. Other expenses 10,000 and 8,000. All the expenses except tax you put it here. इनकम हो गया, एक्सपेंसेस लिस्ट आउट कर दिया. अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर? टोटल ऑफ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का टोटल करना है, all of this total, and then we will come to point number 4, which is profit before tax. ये 3 एक्सपेंसेस का टोटल हो गया और ये 2 है मेरा टोटल रेवेन्यू. सो 2 माइनस 3 कर देंगे अगर यहाँ पर, तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. लेट्स फाइंड आउट हाउ मच इज प्रॉफिट बिफोर. सो एक्सपेंसेस का टोटल 96 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10 comes to 1,34,000 and these for 1,08,000. तो इस साल का टोटल एक्सपेंस इतना और 21 का टोटल एक्सपेंस इतना. 2 lakhs is the total revenue minus this. 2 lakhs minus 1,34,000 gives us 66,000. ये मेरा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, मतलब अभी तक मैंने टैक्स माइनस नहीं किया है. 1,60,000 माइनस 1,08,000 52,000. अब हमको टैक्स कैलकुलेट करना है. टैक्स अगर स्ट्रेट अवे अमाउंट में दिया रहेगा तो ठीक है, माइनस द टैक्स अमाउंट. लेकिन यहां पर टैक्स एज अ परसेंटेज दिया है, दोनों साल का अलग अलग है. दिस इज 45%. so in this year 45%, किसका 45%? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का. जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उस पे टैक्स रेट अप्लाई करो. ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट है उसी पे टैक्स लगेगा ना. सो 45% ऑफ 66,000 इज 29,700. ये मेरा टैक्स है. अगर प्रॉफिट इतना है, टैक्स हम इतना दे देंगे गवर्नमेंट को, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करके आएगा. सो आई विल डू दिस. 36,300. 66,000 minus 29,700. This becomes 36,300. Now same thing we will do for
52,000, उस पे टैक्स रेट कितना है 40%. So 40% of that is 20,800, and if we subtract we get 31,200. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. बस यहां तक मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म. ऑलराइट, व्हाट हैव आई डन? जो भी दिया हुआ था उसमें को मैंने एक फॉर्मेट में डाला. क्या फॉर्मेट है? इनकम सारे पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इफ एनी अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू निकाल दिया. एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस दिए सबको लाइन से लिख दिया, टोटल एक्सपेंस निकाल दिया. फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, एंड देन टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स फाइंड किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को माइनस कर दिया. You've got your structure ready. अब कंपैरेटिव निकालना है, तो कंपैरिजन जैसे हमने बैलेंस शीट में किया लास्ट वीडियो में, we are doing this, the horizontal analysis year after year. So यहाँ पर कितना चेंज हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, this is A minus B, 2 lakhs minus 1,60,000, 40,000 here, absolute change. यहाँ भी ऑफ कोर्स वही है क्योंकि टोटल रेवेन्यू मेरा उतना ही है. Then 96,000 minus 72, 24,000 यहां का चेंज है. नो चेंज, 16 माइनस 16, नो चेंज, 0 0 0 लिखो या एक डैश डाल दो. यहां पे है 2,000. सो नो नेगेटिव फिगर्स है आपका. यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है. अगर 2022 का फिगर छोटा है, 21 का फिगर बड़ा है, तो ये नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव में आने से क्या करते हैं हम? ब्रैकेट में लिखते हैं. वी पुट इट इन द ब्रैकेट, एनी नेगेटिव फिगर. नाउ अगेन टोटल एक्सपेंसेस. Total expenses 1,34,000 here, and this is 1,08,000. So 26,000 is the increase this year. Profit में कितना increase हुआ है? 66 minus 52, 14,000 is the increase, and tax में 29,700 है. Previous year it was 20,800. So you see we are comparing. पिछले साल कितना था, इस साल कितना हुआ है, एक्सपेंसेस कितना बढ़ गया, प्रॉफिट कितना बढ़ गया. सो वी हैव टू, द मैनेजमेंट हैज टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस. तो ये सारी जो एनालिसिस है ये मैनेजमेंट टूल्स है, टेक्निक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसीलिए बोलते हैं इसको. नाउ दैट वी हैव डन दिस, वी हैव गॉट द एब्सोल्यूट चेंज. अब परसेंटेज पे जाते हैं. परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? द एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100. ओके, so let's find that out. This is 40,000. 40,000 divided by, okay, this is 100 divided by 1,60,000 into 40,000. This is 25% change. परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का कॉलम है. बट अगर कुछ राउंड ऑफ करना है तो उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है. So this will also be 25%. Now coming to okay, this is 24,000, the change, divide by 72,000 into 100. So you are at 33.333333. So 3 पे stop कर देंगे because third decimal place is 3, which is less than 5. तो इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे. Then here it's 0. Anything, any 0 divided by anything is again 0. No change, no change. Or you can put it as a dash, not applicable. 0 है, कोई change ही नहीं है यहाँ पर. This is 2,000 by 8,000, again 25%, 1/4. Here I have 26,000 divided by 1,08,000 into 100, 24.074, so 0.7 up to 2 decimal places. ठीक है? Then 14,000 divided by 52,000 into 100 is 26.92392, because इसके बाद 3 है. And here 8,900 divided by 20,800 into 100 is 42.788 है. 788 है तो 79 हो जाएगा. यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देंगे
बिकॉज थर्ड डेसिमल प्लेस 5 या 5 से ज्यादा है. देन दिस वन बाय 16.346. So 3, 5. Alright? It's that easy. So comparative statement हो गया. Done? ये दोनों फिगर्स तो देखो जैसे बैलेंस शीट का कैलकुलेट किया था वैसे ही करना है यहाँ पे. All that you have learned new, if I can say, is this part. इसको फॉर्मेट में डालना है और कंपैरिजन करना है. अब लगे हाथ जल्दी से इसी सब में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट भी सीख लेते हैं. कॉमन साइज भी, ये फॉर्मेट तो चेंज नहीं होगा ना, ये फिगर्स चेंज होंगे. सो 1 2 3 ये तीनों कॉलम सेम है, एग्जैक्टली सेम है. द फर्स्ट थिंग दैट आई चेंज हियर इज द हेडिंग. दिस बिकम्स कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सो एंड सो कंपनी फॉर द इयर्स एंडिंग दिस एंड दिस. तो हेडिंग में ध्यान रखो. और सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, कंपैरेटिव में कॉमन साइज बना दें, कॉमन साइज में कंपैरेटिव. ये नहीं करना है. कंपैरेटिव इज हॉरिजॉन्टल. देखा, वी यूज्ड टू गो आइटम वाइज वन बाय वन. कॉमन साइज जैसे बैलेंस शीट में क्या है, वर्टिकल एनालिसिस है. एक साल का पूरा करेंगे फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस. देन द लास्ट टू कॉलम्स विल बी अ बिट डिफरेंट. ओके, नाउ ये दोनों कॉलम क्या चेंज हो जा रहे हैं, ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये नहीं है यहाँ पर. ओके ओके, सो ये 22 है और ये 21. परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है. बैलेंस शीट में क्या था हमारा, 100 टोटल. बैलेंस शीट टोटल था जिस भी साल का हम दे रहे हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर 100 हो जाएगा. तो इन बोथ द थिंग्स दिस हैज टू स्टार्ट विथ 100. दोनों में स्टार्टिंग में 100 डालो बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब बेस है मेरा, तो टोटल 100 जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. ओके, और हम अब सब फिगर्स को आउट ऑफ द बेस कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि ये टोटल रेवेन्यू कितना है, आउट ऑफ 2 लाख, दिस इज अगेन 100%, राइट. सो दिस इज 100 एंड अगेन 100. 2 लाख बाई 2 लाख इंटू 100, यही करना है मुझे. अब ये हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 96,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100. तो बेस मेरा क्या हो गया, 2 lakhs every year for everything, and I will be multiplying with the relevant item here. तो ये हो गया 48%. Cost of material is 48% of revenue from operation. ऐसे आ गया 48. Then next thing is 16,000. तो 16,000 out of 2 lakhs into 100 कितना आएगा, 8%. Next is 12 lakhs, 12,000, 6%. And last में आ गया 10,000, 5%. Okay, all coming in rounded off figures only. तो ये टोटल भी हमको ऐसे ही चेक करना है, मुझे कुछ नहीं करना है. और 1,34,000 टोटल एक्सपेंस है, that by 2 lakhs into 100 is 67. If you see, ये जो 48 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 ये टोटल 67 ही आएगा बिकॉज इसी का तो टोटल है, टोटल एक्सपेंस है. बट यस, अगर राउंडेड ऑफ फिगर्स होंगे तो थोड़ा पॉइंट्स में इधर उधर होगा. नॉट टू वरी विथ अबाउट दैट. नेक्स्ट इज 66,000 डिवाइड बाय 2 lakhs into 100, 33. एंड देन 29,700, 14.85%. इसमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं जरूरत पड़ा. और ये है 36,300, 18.15. एवरी फिगर आउट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बस यही करना है. ये मेरा वर्टिकल एनालिसिस हुआ ना, 1 year डन. नाउ आई गो टू 2021. यहाँ का बेस कितना होगा मेरा, 1,60,000. So taking that 1,60,000 as the base, I'll be finding out everything out of that. 72,000 out of 1,60,000 into 100, 45 आएगा. 16,000 करना है, 10% आएगा. 12,000 will be 7.5%, and 8,000 will be 5%. Total
1,08,067.5%. और यहाँ पे आ गया 1,60,000 into 52,000, 32.5%, 20,800. आप लोग भी साथ साथ में कर लो इसको. It's very very easy. 20,800, yes. And then last one is 31,200, 19.5%. So what we are trying to do here is find out each element out of revenue from operation, which is 1,60,000 this year. 400 है तो ये सारे कुछ है. तो इसका यहाँ पे आप खुद क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. जितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा है 32.5% है, सोचो उससे अगर हम टैक्स माइनस कर दें तो ये 19.5 आएगा. ऐसे भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, दैट्स हाउ यू गो अबाउट द कॉमन साइज इनकम statement, that is statement of profit and loss. I hope you got this very clearly. It's very easy. I told you ये दोनों statement, comparative common size balance sheet and statement of profit and loss, एकदम एक दिन का काम. You just sit with any book, do any solved examples, 4 से 5 solved examples कर लो. कुछ भी doubt आता है, please post it in the comment section and I will clarify and answer that and try to help you even more. And keep watching my channel. अभी एक और चैप्टर करना बाकी है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए तैयार होना है. बाकी पहले जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, प्लीज़ उसको रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. आई नो योर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू बिगिन, बट यू विल हैव टू कीप इन टच. ओके, टेक दैट एडवाइस and do more of accounts and let accounts be easy for you. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.